Good morning, my dear students. Today I'll teach you some interesting sentences which are used in your daily spoken English. Whenever you speak, some sentences you are unable to speak. So today let's start with some sentences which are very useful in our daily life. So now the first sentence in Hindi I'll tell you, उसे जाने दो. If you have to say उसे जाने दो, there is a word let. Let him go. Like this you can make different kind of sentences. उसे पढ़ने दो, let him study. उसे बोलने दो, let him speak. उसको नाचने दो, let him dance. उसको आने दो, let him come. उसको जाने दो, let him know it. Like this so many sentences are there. मुझे खा लेने दो, let me eat. मुझे उनसे बात कर लेने दो, let me talk to him. मुझे पढ़ लेने दो, let me study. मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दो, let me complete my sentence. Like this you can make thousands of sentences. Right now I am going to tell you कि मुझे पढ़ा लेने दो, let me teach you. Like this, so use of let you can say. How will you speak this sentence? अगर वह जा रहा है तो उसे जाने दो. तो उसे जाने दो, I have already given you let him go. But how you will speak अगर वह जा रहा है तो? अगर वह जा रहा है, if he is going. If he is going, next sentence is the same, let him go. अगर वह पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो. If he is studying, let him study. अगर हम आ रहे हैं तो मुझे हम लोगों को आ जाने दो. If we are coming, let us come. अगर वह रो रहा है तो उसको रोने दो. If he is crying, let him cry. तो next sentences with let simply you can use. And one more word you can use for let, allow. Allow him to go home. For formally you can say that whenever you are talking to somebody politely, you can say allow me to speak, allow me to go, allow me to do this work, sir. So simply you can say, but let in informal way you can say let him go, let him come, let him sit down, let him rest, let him have a rest, let him take a bath. उसको नहा लेने दो, उसको आराम करने दो. Like this you can say. Suppose you are speaking, आज पापा को आने दो, let पापा come today. मम्मी को मार्केट जाने दो, let मदर go to market. अध्यापक को कक्षा में आने दो, let the class teacher come into the classroom. Like this you can use sentences. But अगर वह जा रहा है, अगर वह पढ़ रहा है, so you can say if, then after, like this you can make sentences. Second type of sentence you can say, this is of one type. Like this you can make sentences. If you want to just speak some good English, you have to make sentences based on this. In your every walk of life, whatever you are doing, just make some sentences. Sir, मुझे बैठ जाने दीजिए. Sir, let me sit. Sir, let me have my seat. Different kind of sentences are there you can make. बहुत ही आसान है, बड़े ही आराम से आप लोग पहले सेंटेंस बनाना सीखिए. जितना सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में आप बनाएंगे, आराम से सीख जाएंगे. चलिए सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं. अगर हम इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को बोलेंगे पहले, जैसे अगर हम कहें इसे मत छुओ, इसे मत छुओ, तब हम कैसे करेंगे? मत की मीनिंग क्या होती है? डोंट. डोंट टच इट. डोंट टच इट बहुत ही छोटा सा और इजी है, जनरली बोलते हैं. जैसे अगर बोलना पंखा मत चलाओ, डोंट स्विच ऑन द फैन. अभी मत पढ़ो, डोंट स्टडी नाउ.
उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम। सपोज यू आर स्पीकिंग सम मोर सेंटेंसेस की अगर वह जा रहा है तो उसको मना मत करो। इफ़ ही इज़ गोइंग डोंट फॉरबिड हिम। फॉरबिड मीन्स मना करना। अगर वह खेल रहा है तो उसे मत छेड़ो। इफ़ ही इज़ प्लेइंग डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट टीज हिम। Like this you can make several sentences. I am just giving you one path which you have to follow. एक छोटा सा रास्ता दिखा रहे हैं, इसी रास्ते पर आपको चलना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके बोल जाएंगे। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में तो कुछ हो नहीं सकता, बट एवरी डे इफ़ यू मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिंपली मेक प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो आपको पढ़ा दे, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे, अनलेस यू ट्राई योर सेल्फ यू कांट डू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ऐसे इसी तरह से आप लोग को कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही लीजिए। एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए। इसे मत देखो, डोंट सी इट, डोंट लुक एट दिस। इसे मत करो, डोंट डू इट। मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टीज मी। उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर। उसे मत डांटिए, डोंट स्कोल्ड हिम। तो इस तरह से आप खुद बोलिएगा। अगर इसी जगह कभी नहीं आ जाए तो नेवर लगा दीजिए, नेवर गो देयर, वहाँ कभी मत जाओ। इसी में अगर आ गया है कि कभी नहीं, कभी नहीं आ जाए तो आप तुरंत नेवर लगा के सब कुछ ऐसे ही कर दिए। नेवर प्लस V1 कर दीजिएगा, नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उससे कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू हिम। वहाँ कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। इस तरह से आप लोग आराम से अपने से करते रहिए। तीसरा है खुद से ले लो। खुद से ले लो। अगर आपको बोलना खुद से ले लो, तुरंत बोलिएगा सर्व योर सेल्फ, सर्व योर सेल्फ, सर्व योर सेल्फ। जैसे बफे पार्टियों में देखते हैं, लोग जाते हैं, खुद से प्लेट उठाते हैं, खुद से अपना भोजन लेते हैं, नाश्ता लेते हैं और करते हैं। तो कहते हैं सर्व योर सेल्फ, जाइए और खाइए, जाओ मौज करो। अगर हम ये बोलें चौथे सेंटेंस को, जाओ मौज करो, हाउ यू विल स्पीक। जरा आप लोग जरा सोचें इसको कि कैसे बोलेंगे जाओ मौज करो। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, गो एंड एंजॉय। इतना अगर बोल के छोड़ देंगे तो ये गलत सेंटेंस है। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। हम लोग मौज कर रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग आवर सेल्फ। बच्चे मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चिल्ड्रेन आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे कि योर सेल्फ कब लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता। सर्व योर सेल्फ, खुद से ले लो, खुद से कर लो, डू योर सेल्फ। इस तरह से सेंटेंस को आप खूब प्रैक्टिस करें। जितना अधिक से अधिक सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप कर पाओगे। आपका पांचवा है, अगर आपको ये बोलना हो कि सो जाओ, सो जाओ, तुरंत क्या बोलेंगे, स्लीप। ऐसे नहीं बोल दीजिएगा सो जाओ। अगर कोई रात में सोने जाता है तुरंत कहते हैं गो टू बेड, गो टू बेड। इसी जगह कहें कि जाग जाओ, जाग जाओ। मतलब कोई सोया हुआ है तभी तो कहेंगे जाग जाओ। तब हम बोलेंगे गेट अप, गेट अप, जाग जाओ। ये आपका 6 सेंटेंस है, जाग जाओ। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे अवेक, लड़के कंफ्यूज होते हैं, अवेक भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अवेक का मतलब होता है ना कि वो जागते ही रहना। इज अवेकिंग, वह जाग रहा है, वह सो रहा है, ही स्लीपिंग, सो रहा है, सोने का काम कर रहा है तो सो रहा है, ही स्लीपिंग। लेकिन अगर सोया हुआ व्यक्ति उसको जगाना हो तो गेट अप, प्लीज़ गेट अप, जाग जाइए। अगर कोई व्यक्ति रात में फाइनली सोने जा रहा है बिस्तर पे तो ये मत कहिएगा स्लीप, कहिएगा गो टू बेड। चलो सो जाएं, लेट्स गो टू बेड। अभी हमने पढ़ाया लेट, उसको सो जाने दो, लेट हिम गो टू बेड। हाँ, अगर कोई बिस्तर पे पहले से लेटा हुआ है उसको सोने दो तो कहते हैं लेट हिम स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप।
डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी स्लीप। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाते रहेंगे खूब जल्दी जल्दी, तो आपको ईजिली आपका जो स्पीड है बोलने की वो बढ़ती जाएगी और आप अच्छे से करते जाएंगे। सेवेंथ है, अगर हम इसी सेंटेंस लेट ना लगा के कुछ और बोलें, कि जैसे बोल रहा हूँ कि उसे अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए, उसे अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए। ये ऑफिशियल परमिशन अगर आप लेते हैं किसी अपने अधिकारी से या अपने बड़ों से अगर परमिशन लेते हैं तो इसको बोलेंगे अलाउ हिम टू मीट हिज बेटर हाफ। अलाउ हिम टू मीट हिज बेटर हाफ, वाइफ भी कह सकते हैं, बेटर हाफ अर्धांगिनी होती है, कह सकते हैं बेटर हाफ, शी इज़ माई बेटर हाफ, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी पत्नी है, शी इज़ माई बेटर हाफ। तो अलाउ हिम टू मीट हिज बेटर हाफ, मुझे अब घर जाने की अनुमति दी जाए। जहाँ ऐसे सेंटेंस हो, अनुमति दी जाए, आज्ञा दी जाए, तो आप तुरंत वहाँ पे अलाउ लगाइएगा, लेट नहीं लगाइएगा। लेट तब लगाएंगे ना जब वहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से हो। एक फॉर्मल तरीका है बोलने का, अगर आप कहते हैं कि मुझे घर जाने की अनुमति दी जाए, अलाउ मी टू गो होम, वहाँ पे प्लीज़ लगा सकते हैं, सर लगा सकते हैं, सर अलाउ मी टू गो होम, सर अलाउ मी टू स्पीक, लेट मी स्पीक। It shows that like order, so don't speak everywhere allow and everywhere let. So just you should know each and everything minutely, only then you can speak very good English. If you want to speak good English, you have to know the niceties of English. If you know the niceties of English, you can speak something better. Otherwise you can from books फोर्सफुली, ज़बरदस्ती के ऐसी इंग्लिश तो आप कुछ भी बोल सकता है आदमी, कोई कुछ भी उठाए फट से बोल दिया, दूसरा समझ गया, अंग्रेजी हो गई। बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट इंग्लिश। इफ़ यू आर लर्निंग लैंग्वेज, स्पीक द लैंग्वेज फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, नॉट फ्रॉम ओनली माउथ। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप ये कहते हो कि तुम तो गधे के बाप हो, जनरली अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे यू आर ए फादर ऑफ डंकी बोलेंगे, बट दिस इज इनकरेक्ट, यू आर अ ग्रेट फूल। अगर हम ये बोलें 8th में कि तुम तो गधे के बाप हो, तुम तो गधे के बाप हो, मतलब कोई गधे का बाप तो होता ही नहीं है। कहने का सेंस क्या होता है कि वो एकदम महामूर्ख है, तुम तो महामूर्ख हो, यू आर अ ग्रेट फूल। देख रहे हैं, यू आर अ ग्रेट फूल, तुम तो गधे के बाप हो, वह नालायक है। अगर ऐसे बोले नौवा कि वह नालायक है, तो नालायक की कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, इस तरह से बोलेंगे ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम तो महानालायक हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। वह नालायक है, ही इज गुड फॉर नथिंग। मैं नालायक नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग। इस तरह से आप जो है इस सेंटेंस को बोलते रहें। 10th आपका है, जैसे अगर आपको बोलना हो वह बहुत भोला है, वह बहुत भोला है, बहुत सीधा साधा है, वह बहुत भोला है। भोला जैसे ही इज वेरी गलीबल। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। उसे जाने दो, लेट हिम गो। अगर वह जा रहा है तो उसे जाने दो, इफ़ ही इज़ गोइंग लेट हिम गो। ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसे मत छू, डोंट टच इट। डोंट बहुत ही आसान है, इस पर आप जितना चाहो उतना सेंटेंस बना लो। जैसे कहे मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। उन्हें डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम। मम्मी को आराम कर लेने दो, लेट मम्मी टेक अ रेस्ट।
ये इनफॉर्मल तरीका होता है, घर में लोग जनरली बोल लेते हैं, लेकिन वही चीज़ हमने बोला जब फॉर्मल तरीके से बोले अलाउ। जैसे बोलना हो सर को जाने दो, अलाउ सर टू गो। हाँ, झटके दो, लेट हिम गो, तो यू कैन से, बट just take care of spoken English. Whenever you speak, take care of your emotions, feelings and expression, how you are speaking. जैसे बोला इसे बच्चों हमने कह दिया, आगे है खुद से ले लो, सर्व योर सेल्फ, खुद ही कर लो, डू योर सेल्फ। जैसे बोलना हो जाओ मौज करो, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, सो जाओ, गो टू बेड, जाग जाओ, गेट अप। उसे अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए, अलाउ हिम टू मीट हिज बेटर हाफ, तुम तो गधे के बाप हो, यू आर अ ग्रेट फूल, वह नालायक है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह बहुत भोला है, ही इज़ वेरी गलीवर। लाइक दिस सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे ही सेंटेंस आपको मिलता रहे तो इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि मुझे भी कुछ लगे कि नहीं मैं बच्चों को कुछ सिखा रहा हूँ, जो मैंने वादा किया है कि आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा। तो ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे कदम से हम लोग बढ़ेंगे आगे, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट कॉन्फिडेंट इंग्लिश। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।